الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بات چل رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کو اللہ تبارک و تعالی میدان حشر میں عرش کا سایہ دینے والا ہے۔ تو قریب 30 لوگوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ تو 30/7 اور 30/8 اور 30/9 دو تو ایسے لوگوں کا نام لکھے ہی جن کے بارے میں ہمیں پہلے سے پڑھ لیے ہیں۔ ایک کو انصاف کرنے والا بادشاہ، تو اس کے بارے میں تو ہمیں پڑھ لیے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو لوگوں کے بیچ میں ایسے فیصلے کرتا ہے جو اپنے لیے فیصلے کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ دیں گے۔ عادل بادشاہ، اس کے بارے میں پڑھے تھے۔ اور اسی طرح اس شخص کو بھی لکھے ہیں کہ جو لوگوں کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، لوگوں کے جنازوں کے ساتھ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی تفصیل آئی تھی۔ کتاب والے کیا کریں گے، دو لوگوں کو پہلے سے بیان کریں پھر بھی ان کا نام لکھ دیے، اس لیے تو اب بات ختم ہونے کا رہی ہے۔ بس آخری شخص ہے، آخری شخص 40واں شخص جسے اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ دیں گے۔ کون شخص ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں جگہ دے گا جو اپنے مال کو سود خوری کا ذریعہ نہیں بناتے، سودی لین دین نہیں کرتے، سودی کاروبار نہیں کرتے۔ ایسے بیپاری کو بھی اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ دیں گے۔ سود خوری کا ذریعہ، سود خوری کا ذریعہ نہیں بناتے مطلب کیا کہ بہت سارے لوگ سود کو تو دیتے نہیں، لیکن جو سود دیتے رہتی نا ان کے پاس بلا لگ جا کو سود دلاتی۔ بہت سارے ہیں بیاز کو، بیاز موٹی زبان میں بیاز بولتی ہیں اسے، وڈی، لنچم، رشوت سب بھی آ جاتا ہے اس میں۔ تو بہت سارے لوگ بیاز کو نہیں دیتے، لیکن جا کو جو بیاز دیتے رہتی نا ان کے پاس پیسے دلاتی بیچ میں کھڑ کو۔ یہ بھی بہت بڑا گناہ سب مارا ہے۔ مثال کے طور پر زید کو پیسے ہونا 1 لاکھ روپے سب مارا ہے۔ تو اکرام سود کو پیسے دیتا، تو اب زید کو پیسے ہونا 1 لاکھ روپے۔ زید جا کو اکرام سے پوچھا پیسے ہونا ہوگا، اکرام بول ڈالا میرے پاس پیسے نہیں۔ انہیں قرض پوچھا، اکرام بول ڈالا میرے پاس پیسے نہیں۔ تو زید گیا بکر کے پاس، بکر سے جا کو بولا کہ دیکھ بھائی مجھے 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، اکرام کے پاس پیسے ہی انہیں دیتا نہیں کو بول رہا ہے۔ تو بکر بولا چل میں لکھ دیتا ہوں۔ تو بکر جا کو بات کرے، کیا بھائی پیسے کتنے رہتی دیا 1 لاکھ روپے ہونا کہ تو انہیں خرچ پوچھ رہا، بھائی میں خرچ دیتا نہیں، وڈی کو دیتا ہوں، بیاس کو دیتا ہوں۔ سب مارا ہے 100 روپے کو 1 روپیہ دینا، 100 روپے کو 1 روپیہ دینا، ایسے 1 لاکھ روپے کتنا آتا ہے تو دینا منجے دیتا کیا پوچھ دے تو سب مارا۔ تو ایسا بیچ میں جو لے کو دلا رہا دیکھو بکر، یہ بھی نہیں کرنا، سب نارا ہے، بیچ میں بھی نہیں کھڑنا۔ پہلی بات سود دیناش نہیں، سود لیناش نہیں، بیچ میں کھڑ کو دلانا بھی نہیں، اور سودی لین دین بھی نہیں، دینا لینا سب بھی نہیں، اور سودی بیپاری بھی نہیں، سود کا بیپار، بیاس کا بیپار سب مارا ہے۔ وہ تمہارے اس میں ہے، سمجھنا آتا نہیں بیپاراں کا۔ تو کوئی بھی یاد رکھو کہ جو محنت ہے وہ محنت کا پیسہ، جتنا تمہارا پیسہ اتنا پیسہ، جتنا نفع ہے اس سے زیادہ نفع سب مارا ہے۔ 1 روپیہ بھی اگر زیادہ لیے تمہیں، 4 نے بھی اگر زیادہ لیے سب مارا ہے۔ پیسہ کو بڑا کو لوگوں سے لے رہی،
तो वो भी सूदी में चल जाता है। व्यापारी के एतबार से नहीं भाई, कर्जे देने के एतबार से बोल रहा हूँ। उसमें व्यापार में तो नफ़ा लेना ज़रूरी है, सब मारा है। 100 रुपए की चीज़ को उनका खर्चा पूरा ये वो डाल को लेती हूँ, वो अलग चीज़। लेकिन बहुत सारा ज़माना कैसा आ गएगा तो सूदी लेन देन, कर्जा ज़्यादा। और कौन भी कर्जा हाथ को हाथ नहीं, 1 लाख रुपए दिए 1 लाख रुपए दिया, लोगों को नहीं बोल रहा, 1 लाख रुपए दिए 1 लाख रुपए के ऊपर 1000 रुपये बढ़ा रहा हूँ। महीने महीने को बढ़ रहा पैसा, महीने महीने को इतना देना तुम्हें, अगर नहीं दिया तो तुम्हारे ऊपर और पैसा क्या हो जाता, बढ़ जाता। ऐसा बहुत ज़्यादा हो गया। तो जो आदमी सूदी लेन देन से, सूदी कर्जे से, सूदी का ज़रिया बनने से और अपने कारोबार को सूदी से बचाता है, ब्याज से बचाता है, ऐसे आदमी को भी अल्लाह अर्श का साया देंगे। किसी अल्लाह वाले ने अजीब बात कही है कि 2 चीज़ें छुपाने की थी, 2 चीज़ें छुपा कर रखने की थी, सदमाना, और उनको छुपाना खैर का सबब था। जब से उनको छुपाना छोड़ दिया गया, दुनिया में फसाद हो गया। जब से उनको छुपाना छोड़ डाले, उनको छुपा को रखना छोड़ डाले, दुनिया में हंगामा हो गया। पहली चीज़ माल दौलत, छपा को रखने की चीज़ थी। ये क्या थी? माल दौलत क्या थी? छपा को रखने की चीज़ थी। अब माल दौलत छपा को रखने हो रहा नहीं। अब हर आदमी अपना। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बड़ा मालदार कौन था? आज तक कोई आया भी नहीं और आता भी नहीं। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौलत कहती थी, किसी को मालूम नहीं। आज कौन पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर है कमाई में, बिजनेस में? पूरे इंडिया में कौन फर्स्ट नंबर पर है कमाई में? इसका इनकम कितना, इसकी सैलरी कितना, हर एक को मालूम। तो अब आदमी को ख्वाहिश हो रही है मैं भी ऐसा बनूं, मेरे पास भी दौलत, मेरे पास भी शोहरत, मेरे पास भी इज्जत, मेरे पास भी बंगले, मेरे पास भी गाड़ियाँ। कहीं का तो ये दिखाना शुरू करे, लोगों में हंगामा होगा। अब आजकल दुनिया वाले क्या बोल रही? पैसा रहा तो भाई दुनिया में, नहीं तो मुश्किल जीना गति। अस्तग़फिरुल्लाह। मुसलमान भी ये बोल रही हैं आज, तौबा कर लियो, अल्लाह के वास्ते तौबा कर लियो। पैसा रहा तो दुनिया में ज़िंदगी, वरना दुनिया में हमारी इज्जत नहीं। क्या आप बात बोल रही भाई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, उलमा, अहलुल्लाह, जिनको इज़्ज़तें मिली हैं, बड़े बड़े बादशाहों को भी नहीं मिली। बड़े बड़े बादशाहों, अल्लाह वालों की, मोमिनीन की, सहाबा की क़ब्रों को छोड़कर बड़े बड़े बादशाहों की क़ब्रों को जाकर देखो, नामो निशान भी नहीं। क्या इज़्ज़त है, मरने के बाद भी इज़्ज़त है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला राम समुद्र में पैदा हुए। हाँ, कहाँ पैदा हुए? मक्कतुल मुकर्रमा में नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक मक्कतुल मुकर्रमा, हज़रत उस्मान मक्कतुल मुकर्रमा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। लेकिन नाम कहाँ कहाँ है? पूरी दुनिया में है। क्या है? देखे हमें, सुने हमें, नाम खुद ब खुद ज़बाना पर आ रहा है, सब मारा है। खाली मदनपल्ली के बड़े को कौन पूछ लो, पुंगनूर के बड़े को कौन पूछ लो, कौन है कि खेत का मूल्य मंजे क्या भाई कहते बोल दी कि नहीं? खेत में काम करने वाली बूढ़ी औरत को जब पूछो कौन मैं तुम्हारा सीएम, मेरा हमारे दीप मंजे सीएम कथी वाले कौन है कि मंजे कहीं को कथी साफ बोलते हो। तो पूरी कायनात में अल्लाह तबारक व तआला कैसा जिंदा करा, देखो नाम सहाबा का, मक्का का, राम समुद्रम का, हज़ारों किलोमीटर। सिर्फ राम समुद्रम की बात बोल रहा हूँ, समझ जाओ को पूरी दुनिया के कोने कोने में सहाबा का नाम गूंजा। ठीक, चारों तरफ से पहाड़ा, बीच में एक गाँव मक्का, मक्कतुल मुकर्रमा, उसमें पैदा होने वाले सहाबा, उसमें ज़िंदगियाँ गुजारने वाले सहाबा। किसी के 20 साल थे, किसी के 30 साल थे, किसी के 40 साल थे, ज़िंदगियाँ गुजारने कुछ थे। लेकिन जब नबूवत मिली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बने, सहाबा उनके ऊपर ईमान लाए, तो 2, 3, 4 साल ज़िंदगी मेहनत पड़े, 20 साल मेहनत पड़े, 30 साल मेहनत पड़े, होता पूरी दुनिया तक अल्लाह नाम चमका को उठा लिया।
कैसी इज्जतें हैं, नाम आते अदब से गर्दना झुक जाती। बड़ा से बड़ा कोई भी आ जान दे, सर मारा है, झुकते नहीं। एक है इज्जत दिल से, एक है इज्जत है दिल से, एक है डर को। क़यामत के करीब इज्जत कहीं को मालूम क्या डर को कहते हैं। इन्हों क्या कर डालती कि हमें इनको इज्जत दिए नहीं तो। क़यामत के करीब इज्जत देते इसके मालूम क्या डर को। अब इन्हों बड़े आदमी भाई हमें इनको इज्जत दिए नहीं तो इन्हों क्या कर डालती मंजे बदनाम कर डालती इनको इज्जत देना। अब अब्बा इज्जत दिए नहीं तो घर से भगा डालते। दिल से इज्जत नहीं आती, लेकिन सहाबा की जो जो इज्जतें आई किसकी वजह से आई, दिल से आई। किसकी? दिल से। तो क्या इज्जतें मिली अल्लाह तबारक व तआला, क्या इज्जतें दिया, क्या दौलत दिया, क्या शोहरत दिया, क्या इज्जत दिया। कुरान में उनकी तारीफ़, किसमें? तौरात में उनकी तारीफ़, ज़बूर में उनकी तारीफ़, इंजील में उनकी तारीफ़। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक सबको मालूम था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जमात सहाबा की भी आने वाली है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर एक नबी को भी मालूम था कि एक सहाबा की जमात आने वाली है जो नबी को साथ देगी, पूरी दुनिया में ईमान को फैलाएगी। क्या था उनके पास? दौलत थी। दौलत थी क्या? नहीं थी। गरीब बकरियां चराने वाले। बकरियां चराना नहीं आता था, लेकिन अल्लाह दुनिया चलाना दिया ले हाथ में। सिर्फ किसकी बरकत से? ईमान की बरकत से। आज मुसलमान क्या बोल रहा है? पैसे नहीं तो मुश्किल मौलाना दुनिया में जीना कहता है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह नहीं तो मुश्किल भाई दुनिया में जीना दिल में है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। अल्लाह फरमाता है कायनात में, ज़मीन में एक चीज़ भी ऐसे नहीं जिसे मैं नहीं खिलाता हूँ। सबको खिलाने की ज़िम्मेदारी मेरी। अल्लाह बोल रहा, सबको देख लेने की ज़िम्मेदारी मेरी। कौन है अल्लाह के अलावा जो तुम्हारी मदद कर सके? कौन है अल्लाह के अलावा जो तुम्हारी मुश्किलों में साथ आ सके? कौन है? कोई नहीं है अल्लाह के अलावा। तो दौलत को छपा कर रखना था, लेकिन आज दौलत को बाहर दिखाना शुरू कर डाले। हमारा पैसा बैंकों में जमा हो रहा है। कहाँ जमा हो रहा है? बैंकों में जमा हो रहा है। आज हर एक चीज़ का वीडियो बन रहा। आज मालूम है घर में क्या क्या चीज़ें ही, घर में कितने बेडरूम ही, घर में कितने गाड़ियाँ ही, घर में कितने कारां ही, घर कैसा कास्टली है, घर को कितने डोरा ही, बाथरूम कैसा है, हमाम कैसा है। बनाने के मेरे यूट्यूब वीडियोस होम टूर के नाम से। चोर को अच्छा दिख रहा नहीं, अरे घर अच्छा दिख रहा नहीं क्या भाई? एड्रेस के साथ तुम्हें नहीं सोच जाका है तो बेचारा होम टूर उन्हें कर लगा था अंदर। समझ आ रहा है? आराम से जाके होम टूर कर लगा था। तो दौलत बाहर पड़ रही है कि नहीं? हर आदमी ये मेरी कार, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा घर, ये मेरे चीज़ां, ये मेरे अवार्डा, ये मेरे गिफ्टा। ये तो कौन दिखा रही साथ? चोरां को दौलत। बात दिल में आ गई, लेकिन हट को है। कभी कभी भाइयों में, बहनों में या घर वाले में लड़ाई चली कि प्रॉपर्टी को बांट लेना है, तो एक एक बात बोलो अल्लाह मौका दिया सर मारा। एक बात बोलो प्रॉपर्टियाँ जो लेना है ले ले, मुझे माँ बाप को दिया। क्या बोल डालो भाइयों को? तो क्या क्या प्रॉपर्टियाँ लेता कि ले ले, बूढ़े माँ बाप को क्या कर डाल? मंजे दियाल। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वो। आज क्या हो रहा है? माँ बाप को प्रॉपर्टी के हिसाब से बांट ले रही। तू रख ले चंदीन, तू रख ले चंदीन, तू रख ले चंदीन। अल्लाह की कसम खा को बोल रहा हूँ, अगर मौका मिला तो ले लो माँ बाप को, हरगिज़ छोड़ो ना को बुढ़ापे में। प्रॉपर्टियाँ होना भाड़ में जान दे, किसे ले लो? माँ बाप को ले लो। स्टेटस के बातें अच्छे दिखते से मालूम है, ज़िंदगी में वो बातें पर अमल मुश्किल। माँ जन्नत, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बहुत आसान बोलना, लेकिन माँ के साथ वैसा सलूक करना बहुत मुश्किल। नहीं करते आज चुपके नामा। खाली मदर्स डे पर रहती है अच्छा गिफ्ट दिया को, सब में आ रहा है रहती अच्छा गिफ्ट दिया को, रहती अच्छा विश कर डाले होगा। हाँ, ये हमारे नबी सिखाए सो माँ के साथ अजमत है। तो दौलत सबसे खराब चीज़ दौलत। फिरौन क्या मौत मरिया,
قارون اپنے خزانے کے ساتھ ابھی بھی جا رہا ہے. شداد کیسی موت دی اللہ, دنیا میں جنت بنایا, دیکھنے سے پہلے پہلے مار کو دکھا اللہ. بڑے بڑے بادشاہ دنیا پہ حکومت کرنے والے, نمرود کیا حالت ہوئی اس کی, مچھر گھسے ناک میں. بڑے بڑے دولت والے کہاں گئے؟ اس لیے پہلی چیز چھپا کو رکھنا تھا, کیا دولت. آج کیا ہو گئی, وہ باہر پڑ گئی. سننا ڈر, گھر میں پیسہ رکھے تو ڈر, اس لیے فوراً لگاؤ, کیا کرتے رہو, کیا کرتے رہو. غریبوں کو دینا چھوڑ ڈالے, یتیموں کو دینا چھوڑ ڈالے, بیواؤں کو دینا چھوڑ ڈالے, مسکینوں کو دینا چھوڑ ڈالے, خاندان والوں کو دینا چھوڑ ڈالے. چیزاں پو, گاڑیاں پو, فنکشناں پو, شادیاں پو, دعوتاں پو حالات خرچ کر ڈالتے ہیں. تو دولت چھپا کو رکھنے کی چیز تھی. تو آج کیا ہوگی, دولت باہر پڑ گئی. پہلے بلڈے تھے, بلڈے ہٹ گئے, نوٹا ہے. کیا ہے, نوٹا ہے. پھر نوٹا میں بھی رقم ماری, نوٹا ہے 500,000 کے ہٹے, پھر الگ ہے. پھر نوٹا ہٹے, کارڈا ہے ہاتھ کو, کیا ہے, کارڈا ہے. اب نوٹا زیادہ ہی, کارڈا زیادہ ہی, کارڈا ہے. پھر کارڈ آ گئے, فون پہ گوگل پہ آ گا. اب کیا آگا, فون پہ گوگل پہ. آدمی کے جیب میں پیسے نہیں, پیسے ہی کیا پہ نہیں, گوگل پہ کر ڈالا ہے, کر ڈالا. اب رتی دن کے بعد کیا آ رہا ہے کہ ڈر لگ رہا ہے, ہمارے پیسے کہاں ہیں, فون میں, گوگل پے میں, فون پے میں ہی سن مارا ہے. دنیا اپڈیٹ ہو رہی ہے, کہتے کیا ہو رہی ہے, اپڈیٹ ہو رہی ہے, کہتے ساتھ میں ہمیں بھی اپڈیٹ ہونا. کہتے مسلمان اپڈیٹ ہونا اچھی بات ہے, لیکن اپڈیٹ کے ساتھ تمہیں اپڈیٹ ہو جانا یہ اچھی بات نہیں. دنیا بدلتی رہتی بھائی, لیکن تمہیں تمہارے سکیت رہنا. سب میں آ رہا ہے, دنیا جیسی بدلتی جا رہی ہے ویسا تمہیں بھی بدل لگا ہے. اللہ کی قسم, جس کے دل میں دنیا چلی گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے بات صاف فرمانے لگے کہ جس طرح میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں تم بھی اس طرح دنیا چھوڑ کر آ جاؤ. مطلب کیا, پانی کشتی کے نیچے رہنے تک اچھا, پانی کشتی کے نیچے, جہاز کے نیچے رہے تک اچھا. پانی کو ہمیں اتنا لاڑ دیا لے کہ جہاز کے اوپر لے لگا کے پانی کو, تو کیا ہوتا ہے, ڈوب جاتی, مر جاتی. تو پیسہ جیب کے اندر رہنے تک اچھا, گھر میں رہنے تک اچھا, چیزاں کھانے پینے تک اچھا. پیسہ جب دل میں آ گیا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے تو آدمی غارت اور برباد. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے تھے تو سارے کے سارے شیطان بڑے شیطان کے پاس گئے. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئیں, اب مشکل دنیا میں. تو شیطان بلا ڈرو نہ کو, انسانوں کے دلوں میں جھک کو. تو سب شیطان انسانوں کے دلوں میں جھکے, پھرا کو پورے بولے کیا ہوا. حضرت سب کے دل میں رتی نہیں رہتی دنیا کی محبت ہے, تب کا تو ڈرو نہ چھوڑا لو, ہمارے مشن ابھی بھی چلتی ہے. مطلب کیا بھئی, آج دیکھ رہی نہیں پیسے کی خاطر کیا کیا ہو رہا ہے. ماں باپ کو مار دیتے بچے, پراپرٹیاں میں جلدی حصہ بڑھتا نہیں ہوگا. مرتے ہی ماں کے جنازے کو بازو رکھو, پہلے کیا کرو, پراپرٹی میں حصہ بانٹو, پھر جنازہ اٹھانے دیتی ہمیں. سب مارا ہے یہ حالت. آج بہنوں کو حصہ نہیں مل رہا, جو کمایا ہے اچھا ٹیلنٹ سے انہیں رکھ لے رہا, چھوٹے بھائیوں کو حصہ نہیں دے رہا. کیا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بالشت زمین بھی ناحق کسی کا لے لے کو رکھ لیے, کل قیامت کے دن اللہ ساتوں زمین ساتوں آسمان کا ہر بنا کو گلے میں ڈالتا کہتا. اللہ بولتا کہتے جاؤ ساتویں نیچے, جہنم کے سب سے نیچے جو حصہ دینا نا وہ حصہ ہے, جا کو اٹھا لگاؤ کہتا کہتا. جن کا حصہ تمہیں ناحق لیے تھے نہیں ہے وہ حصہ کہاں رکھا ہوں میں, جہنم کے سب سے نیچے رکھا ہوں, جا کو اٹھا لگاؤ. آدمی جاتا کہتے نیچے تک, اٹھا لگاتا جل کو نیچے گرتا رہتا, اٹھا لگاتا جل کو, پوری زندگی ویسا چل. کسی کی ایک بالش زمین مار لیے تو آج جا زمینہ کنٹے ایکرا مار لیتے ہیں ناحق. اور خوشی کیا ہی, خوشی ہمارے پاس اتنا ہے ہوتا ہے, کیا ہے خبر میں آج جگہ میں مل رہی ہے نہیں. آج کے حالات کے حساب سے جو لڑ لیے, جو لے لیے ڈاکٹروں سے, لڑکوں اسپتالوں سے لے لیے,
انہیں لے لا دفنا لے سکری. جن کی باڑیاں نہیں مل رہی ان کو کیا کر رہی ہیں؟ پانیوں میں یہاں وہاں پھینک کو چھوڑ رہی. جگہ مل رہی ہے زمین میں. تو ہماری دولت باہر آ گئی. آج مسلمانوں کے دلوں میں بھی آج دنیا آ گئی. کمانا کمانا کمانا. دیکھو آج بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اتنی خطرناک بیماری میں بھی اتنا خطرناک وائرس ہے یا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن دنیا کے حساب سے ہے. سب نہ رہا ہم نہ تو معلوم ہے کہ نہیں کیوں کو. اس میں بھی آدمی کمانا چھوڑ رہا ہے. 10 بجے تک دکان آئی. کب تک ہی؟ 10 بجے تک. فوراً تیاری شروع. رات سے پورا ریڈی سے رکھ لے کو. فوراً نماز پڑھتے ہی بھاگو. کیا کرنا ہے؟ دکان کھولنا ہے. کب تک؟ 10 تک ہچکت ہے. ٹائم نہیں ہے. جلدی جلدی کما لیں گے، جلدی جلدی رکھ لیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو زندگی کا ٹائم ہے تمہارے پاس. یہاں تو ٹائم بول ڈالے دکانوں کا کتاب کو 10 تک کو. اللہ بولے تمہاری زندگی کا ٹائم ماں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا لے رہا اللہ. جوان بچوں کو بلا لے رہا اللہ. بوڑھوں کو بلا لے رہا اللہ. شادی نہیں ہوئی سولیں کو بلا لے رہا. شادیاں ہوئی سولیں کو بلا لے رہا. ایک کیجے گھر میں 3 4 5 جنازہ کو اٹھا لے رہا اللہ. آج کے زمانے میں ٹائم کہاں ہے ہمارے پاس؟ ہے ٹائم ہمارے پاس. کب تک جیتیں گے؟ ہے ٹائم. خود بھی ہمارے رشتے میں ایک ہی دن میں 5 جنازے. 5 جنازے. ٹائم کہاں ہے آج؟ تم نہ تو حکومت بول کر 10 تک تمہیں دکان کھول لو، جلدی جلدی کما لو. لوگوں کو بول رہی جلدی جلدی لے لو چیزاں. 10 کے بعد دکان بند. نہیں ملتا تم نہ شام تک. پھر دوسرے دن نیچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بول کر چلے گئے تمہارا ٹائم آ کو کان میں اذان دیا نہیں ہے، کان میں اقامت دیا نہیں ہے. بس تمہاری نماز جنازہ کھڑنا ہوتا ٹائم تمہارا. اذان ہوگی بھئی، اقامت ہوگی. اقامت ہوتے ہی امام صاحب بول ڈالتے نہیں اللہ اکبر کو. مؤذن صاحب پیچھے کھڑے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں امام صاحب سامنے اللہ اکبر کہیں گے نہیں. تو ہمیں پیدا ہوتے ہی یہاں اذان دیا لے، یہاں اقامت دیا لے. اب بس نماز جنازہ میں تکبیر بولنا ہوتا. کتنا ٹائم ہے؟ بہت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ پانی پیوں حلق سے نیچے اترتے کہ نہیں کہ ڈاؤٹ من جاؤ. تب تک زندہ رہو تم کہ نہیں کہ ڈاؤٹ. یہاں وضو ٹوٹیا ہے، سامنے ندی ہے، وہاں تک جاتوں کہ نہیں کہ ڈاؤٹ من جاؤ. ایسی زندگی گزار کو چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج لوگ کتنا دنیا کی فکر کر رہی ہیں. بھائی یہی فکر ہمیں دین کے بارے میں کرنا تھا. صحابہ جنتی تھے، اللہ کی قسم جنتی تھے. اللہ فیصلہ کر ڈالا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں صحابہ سے خوش ہوں، صحابہ میرے سے خوش ہیں. کلنا وعد اللہ الحسنہ کہ پورے کے پورے صحابہ جنتی ہیں کو اللہ فیصلہ کر ڈالا تھا. پھر بھی کیا محنتاں پڑے بھائی، کیا اپنے جاناں کو قربان کریں، کیا دین کے کام ہم آگے بڑھیں، کیا نبی کی محبت میں اپنی جانوں کو قربان کریں. سبحان اللہ. کئی کہ تو ان کو معلوم تھا کہ زندگی ایک دھوکہ ہے، دنیا ایک دھوکہ ہے، صرف دھوکہ ہے. جیسا لیس کی پیکٹ لیتے ہی خوش ہو جاتی نہیں، موٹی ہرے پیکٹ ہے، فل رہتا سکا ہے اس میں، پھوڑتے ہی کیا دکھتا اس میں، کونے میں تا پڑیا رہتا. ایسا دھوکہ ایک. اچانک ہنستے رہتے کہتے بیٹھ کو ملک الموت پیچھے سے بولتی کہتے کیا پاگل آدمی ہے، موت پیچھے ہے، ہنس رہا ہے، گناہ میں مبتلا ہے. کہنے والوں نے کہا کہ آدمی ہنستا رہتا ہے، مذاق کرتا رہتا ہے، کھیلتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، اس کا کفن کا کپڑا دکان میں آگا رہتا کہتا، اس کے صابنہ، اس کے ریٹھے، اس کا شیمپو، اس کا کافور سب آگا رہتا کہتا. کہاں؟ دکان میں. یہ بیچارہ کیا کرتا ہے؟ کھیل رہا ہے، مذاق کر رہا ہے. تو کیسا حرام. حلال زندگی گزارنے والوں کی ایک ایک منٹ بھی کیا ہے بہت بہترین. ہو حرام میں گناہوں میں گزارنے والے کے بارے میں بول رہا ہوں میں. سمجھ میں یہ بات. تو دنیا 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 کاش فکر ہو جاتی کہ اب ہمارے پاس بہت ٹائم ہے. حکومت تو بھی 10 تک ٹائم دی ہے، اللہ تو ٹائم بھی دیا نہیں ہے. کب بلا لیتا معلوم نہیں. تیار رہنا تھا ہمیں، ریڈی رہنا تھا ہمیں. کاما کر لے نیکی کے کاما کر لے.
गुनाह होते फ़ौरन रोना था अल्लाह के पास, माफ़ी मांगना था। तो दौलत बड़ी ख़राब चीज़ है, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मतलब क्या कहते, दौलत कमाना गलत नहीं, दौलत रखना गलत नहीं, लेकिन दौलत पर ही पूरा भरोसा रखना है। शरीयत ये नहीं कहती कि कमाओ न को जमाओ न को, शरीयत कहती खूब कमाओ, माँ बाप का, बीवी बच्चों का, सबका हक अदा करो, लेकिन थोड़ा गाड़ी पलटाओ। मतलब क्या कि सिर्फ इससे जो हमारा काम हो सकता है, ये गलत है। दौलत मेरे पास है, शोहरत मेरे पास है, इज़्ज़त मेरे पास है, कई सारे अपने नाम के झंडे उड़ाने वाले, कई सारे अपने नाम के नारे उड़ाने वाले, आज उनके नाम निशान भी नहीं है, उनका खबरों में चले गए, सब मारा। तो दौलत को छुपाना था, दौलत को बाहर करे तो आज कितना हर एक काम, बड़े से बड़ा टेररिज्म का काम भी हो, बड़े से बड़ा कत्ल भी हो, बड़ा से बड़ा कोई भी स्कैम, सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है? पैसों की वजह से। किसकी वजह से हो रहा नहीं क्या भाई? आज गरीबों की ज़मीनें छिना का ना, तो भी का मकसद वहाँ पैसा, दौलत। तो पहली चीज़ क्या थी? छुपाना था मालो दौलत। दूसरी चीज़ थी औरत। क्या? औरत, छुपा कर रखने की चीज़। अल्लाह हज़रत सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम को सबके सामने पैदा किया, फरिश्ते भी देख रहे थे, फरिश्तों के सामने बनाया अल्लाह, किसे? आदम अलैहिस्सलाम, रूह फूंका। लेकिन अम्मी हव्वा को कैसा बनाया कोई नहीं मालूम, कि कोई नहीं जानते अल्लाह कैसा बनाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थोड़ी देर ऐसा आँखें बंद कर लेते थे, आँखें खोले तो सामने अम्मी हव्वा ही। कैसा बनाए, क्या बनाए, किसी को नहीं मालूम, सिर्फ इतना मालूम कि बाईं फसली से अल्लाह बनाया। बाईं फसली दिल के करीब है, बाईं फसली दिल के करीब है, यहाँ से भी दिल है, राइट तरफ लेफ्ट तरफ, तो बाईं फसली लेफ्ट दिल के करीब, माँ दिल के करीब, बेटी दिल के करीब, बीवी दिल के करीब, बहन दिल के करीब, नामहरम औरत दिल के करीब नहीं, दूर रहे। उन्हें भी औरत इस्लाम माना, अभी भी उन्हें तुम्हारा रास्ते नहीं बनी, उन्हें हलाल नहीं बनी, उन्हें हराम, उन्हें सब मारा गया भाई। गोश्त हर एक भी हलाल को खा गए तो खंजीर का गोश्त भी हलाल है। चंद चीज़ें खाना है, चंद चीज़ें नहीं खाना है, ऐसा चंद रिश्ते हलाल ही, चंद रिश्ते हराम। तो अम्मी हवा को अल्लाह कैसा बनाया किसी को नहीं मालूम। और सबसे बड़ी अच्छी बात, ताज्जुब की बात क्या है, देखो पूरे कुरान में अल्लाह किसी भी एक भी औरत का नाम अल्लाह नहीं लिया। एक भी नबी की बीवियां हों, नबी की बेटियां हों, उम्मत की औरतें हों, सबको अल्लाह सिर्फ मोमिनीन या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक ऐसा हुजूर अपनी बीवियों से कहिए, ये किसी भी औरत का नाम नहीं लिया, सिर्फ एक औरत का नाम लिया अल्लाह पूरे कुरान में। किसका? ये एक औरत का नाम लिया, कौन? वो भी हज़रत मरियम का। किसका? वो भी कहीं को लेना पड़ा, नऊज़ुबिल्लाह। लोग कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे। किसके बेटे? अल्लाह के बेटे। नऊज़ुबिल्लाह। लोग कहते थे कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बीवी हैं। तो अल्लाह ये बात को जहनों से साफ करने के लिए कि ईसा मेरे बेटे नहीं हैं, मेरे बंदे हैं, ईसा मरियम के बेटे हैं। किसके बेटे? मरियम के बेटे। बग़ैर शोहर के अल्लाह बच्चा दिया है। मानना है तो मानो, नहीं तो जाओ, नहीं तो जाओ। तो सिर्फ अल्लाह ये बात को समझाने के वास्ते अल्लाह क्या करे, एक औरत का नाम लिया, वरना किसी भी औरत का नाम अल्लाह नहीं लिया। बच्ची पैदा होते ही चंद दिन खेलने छोड़ती, फिर जब उसके ऊपर शरीयत फ़र्ज हो जाती, यानी बुलूगत में आ जाती, पर्दा आ जाता, यहाँ जाना को, वहाँ जाना को, यहाँ कहीं को इतनी देर थी, यहाँ कहीं क्या कर लेती थी, इतनी देर वहाँ क्या करती थी, हर चीज़ में बुरखा नहीं सका, कहीं को गई बुरखा पे लेके जाना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, इनसे नहीं बात करना, उनसे नहीं बात करना, इनसे नहीं मिलना, उनसे नहीं मिलना, पूरी उम्र उनके ऊपर प्रेशर डाल 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 को शादी तक ले लगाती। कहाँ तक? शादी तक। अब शुरू होता, देखो वहाँ से हंगामा, ले लगा को बिठाओ मर्दों के सामने, सबके सामने, रस्मान से शुरू हो वहाँ से।
शादी महल में पूरे गांव वालों के सामने लैला को बिठा लो, बेटी को पूरी जिंदगी बेटी को छपा को रखे घर में, रोखे में भी लिख डाले, नाम नहीं, सब मारा नाम लिखे नहीं, कहीं को तो पर्दा कहते क्या, पर्दा, लेकिन पूरे गांव वालों के सामने ले लाओ, कैमरे वाले के सामने ले लाओ, बिठा रहे बेटी को। इतने दिन तुम्हें पर्दा करके फायदा क्या? पूरे गांव वालों को मालूम नहीं था इनकी बेटी को ऐसी थी क्या बेटी को, लेकिन शादी के दिन मालूम हुआ था, अच्छा इन्हें बेटी को, इन्हें बीवी को, वो शोहर भी कहीं का बेहया रहेगा, जिसे पूरे गांव के मर्द माने देख डाले, ऐसी बीवी को अपने साथ लेने जाता है। मर्द की गीरत नहीं भाई, मर्द बहुत ज़्यादा गीरत वाला, सब मारा है, इरा गुस्सा, पूरे गांव के मर्द माने देखे बीवी, आज शान समझती हूँ उसे क्या, कितने मर्द बाने देखती हैं, कितना ख़ानदान वाला एक देखती हैं कि वो इतनी शान हमारी शादी में, अस्तग़फिरुल्लाह, छपा कर रखने की चीज़ क्या, छपा कर रखने की चीज़ औरत। तो औरत आज बाहर निकली तो फसाद खड़ा हो गया, नहीं कितने लड़ाई हो रही भाई, बड़े से बड़े अच्छे बिजनेसमैन है फंस गए औरतों के जाला में, अच्छे हम तो नहीं लेना, अल्लाह माफ़ फरमाए, अच्छे लोग फंस गए औरतों के इसमें फितरे में फंस गए, ब्लैकमेल पकड़ने के वास्ते किसे इस्तेमाल करे, औरत कुछ इस्तेमाल करे। आज सिर्फ कहीं भी देखो तुम्हें औरत, ये औरत गलीज, ये औरत जानिया, ये औरत ये औरत, ये एक मर्द को भी इन्हें जानी को बोलते नहीं, ये एक मर्द को भी इन्हें गलीज बोलते नहीं, ये एक मर्द को बोलते नहीं हाँ जाता हूँ, सब भी किसका नाम मालूम क्या, औरत का इस्लाम, बेवा औरत, गरीब औरत, यतीम औरत, इन कुछ पूरा गाँव बोलता, इन्हें गलीज, इन्हें जानिया, इन्हें बाजारी, इन्हें ऐसा, इन्हें वैसा, अल्लाह माफ़ फरमाए। ये नामा सिर्फ किसे इस्तेमाल हो रही, औरत को मजबूर कर रही, सो कौन मर्द, मर्दां का नाम आ रहा जा नहीं आ रहा, सिर्फ नाम किसका आता है, औरत का चाहता। तो माँ थी उन्हें हमारी, बहन थी उन्हें हमारी, बेटी थी उन्हें हमारी, बीवी थी हमारी, आज उसे बाहर ला डाले, क्या करे, बाहर ला डाले, खेल मजाक, सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहा है आज औरतों पर, सच तो मानो झूठ तो मानो, एक जगह नहीं कई जगह फिरा हूँ, अल्लाह फिराया है, दिखाया हुई हूँ, रोया भी हूँ कई जगह, इतना जुल्म होता बच्चियों पर। क्या भाई मोहब्बत से बात करे तो क्या हो जाता है माँ बाप भाई को बच्ची को, इसीलिए तो उन्हें घर छोड़ कर जाने तैयार है सो कि ना बाप बात करता है, ना माँ बात करती है, ना बहनें बात करती हैं, उन्होंने अपने काम में ही, फिर कई को भाई बच्चे मार डालना जान से, बच्चों को पैदा कर ले, उनको मोहब्बत से बात करें, नहीं तो कोई आता है चार बातें मीठे बातें करता है, चार मोहब्बतें दिखाता है, खुश हो जाती, मेरे माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत इन्हें दिखा रहा हो, माँ बाप को छोड़ने तक तैयार हो जाती। इसीलिए हमारे नबी बोले अकरीमो औलादकुम, बच्चों की इज़्ज़त करो, बच्चों की इज़्ज़त करो, जो माँ बाप बच्चों की इज़्ज़त करती वो बच्चे कभी भी अपने माँ बाप का नाम मिट्टी में नहीं मिलाते। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब घर आती तो ख़ुद हमारे नबी दरवाजे तक चल कर जाते, बेटी को हाथ पकड़ को बुला ले आते, पहले बेटी को बिठाते फिर हमारे नबी बैठते। क्या इज़्ज़त देखो बेटी की। हाँ, रात में एक मरतबा हज़रत हसन उठे, हज़रत हसन या हज़रत हुसैन गालिबन दोनों में से कोई एक उठे, उठकर अम्मी को उठाए, हमारे नबी भी उठ गए, नाना थे ना, हमारे नबी भी उठ गए, अम्मी प्यास लगती है पानी होना, सोच लगती है पानी होना। हज़रत फ़ातिमा उठने गए, हमारे नबी बोले फ़ातिमा तुम्हें बैठो मैं जाता हूँ, नाना जा रही पानी ले लगाने, बेटी को बिठा कौन जा रही, नाना जा रही, ढकल डालो से बाहर, ऐसे छोड़ फिर आता रहता उन्हें, आता भी फिर उन्हें नाना जा रही पानी ले लगाने, और सीधा घर के बाहर जाको क्या करे, बकरियों का दूध दो को बकरियां ले लगे, बकरियां का दूध ले लगे, बकरी का दूध ले लगे, बेटा पूछा सो पानी नवासा, लेकिन ले ला देरी से क्या दूध सलमाना। तो दूसरे भी उड़ गए थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को दिए,
सदमा रहा है। देने के बाद फरमाया कि जब बच्चे एक पूछे तो तुम्हें उससे ज़्यादा दो, जब बच्चे कम पूछे तो तुम्हें अच्छा दो, मामूली पूछे तो तुम्हें भी भारी दो। पूछे सो पानी हमारा नबी दूध दिए, पूछे सो पानी हमारा नबी दूध दिए। और जारी सो कौन हमारा नबी उठको नाना बेटी नहीं, कौन जारी सो नाना जारी सो, कोई जाती है नाना उठको नवासे वैसे काम करना है। क्या इज्जत, सुभान अल्लाह। इतने अच्छे नबी भाई हम ना, इतने अच्छे नबी, इतने अच्छा दीन मिला हमना। तो बच्चियों को इज्जत दो, बच्चियों से मोहब्बत करो, लाड़ दो, प्यार करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, बच्चों पर सख्ती करो ना को, हद से ज़्यादा सख्ती कर डाल रही है माँ बाप, बच्चे हाथ से निकल जा रही, अब रोते रहती ज़िंदगी भर बैठ करो ना, रो ही नहीं सका, बच्चा को रहती इज्जत से देख ले रहते तो सदमा रहा है। बच्चों को दीनदारी सिखा ले को, बच्चों को इंसान बना ले को, बच्चों को प्यार कर ले, मोहब्बत के लिए रख ले रहते तो आज वो होता था। तो बोलने का मतलब ये है कि ज़िंदगी भर भाई को बच्ची को छपा छपा को शादियाँ में, फंक्शना में, दावता में सब क्या करती है, सामने ला लेती। और बहुत सारे बेहया बेग़ैरत शोहर ऐसे भी हैं जो बीवी से बोलती बुर्खा पहनना नहीं, हरगिज़ नहीं पहनना, मेरा भैया आया तो सामने आना, तुम्हें मेरे दोस्त आए तो सामने आना, मेरे फ्रेंड्स है तो सामने आना, गलीज़ उन्हें बड़ा ख़तरनाक उन्हें से बच कराना। सदमा रहा है, दोस्त आ मेरे दोस्त आई हाँ सामने है, कहता नहीं बड़ा गलीज़ उन्हें देख कराना, उसे उसकी नीयत बराबर नहीं है। दोस्तों के सामने अपनी बीवी को बुला के दिखाता है, बीवी तेरी या दोस्तों की है, पर्दे में रखने की चीज़ भाई वो। एक मर्तबा गालिबन हमारे नबी की 2 बीवियाँ बैठी थी, हमारे नबी की 2 बीवियाँ बैठी थी, हमारे नबी से बात कर ले को। अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम, नाबीना साहबी, अंधे साहबी उन्हें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया पर्दा करो। बीवियाँ कहने लगी हुजूर उन्होंने तो अंधे ही, उनको तो दिखता ना कहीं को पर्दा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तुम ना तो आँखें ही ना, उनको आँखें नहीं भाई, तुम ना तो आँखें ही नहीं, तुम्हें क्या करो, पर्दा करो। कितनी अच्छी तालीम किसकी। तो दूसरी चीज़ छपाने की क्या थी भाई, औरत। लेकिन जब औरत बाहर पड़ी तो दुनिया में फसाद मच रहा, कहीं निकाला तो दूसरी चीज़ थी औरत को छपाना, औरत को छुपा कर रखने की चीज़ थी। लेकिन जब औरत बाहर आ गई तो फितना खड़ा हो गया। आज सदमा रहा, कई सारी दीनदार औरतों को हमें देखे भी हैं, क्या इज्जत के साथ घरा में जीते मालूम क्या इज्जत के साथ। खुद हमने अच्छा याद है, हमें मदरसे जब पढ़ते थे तो हम एक घर गए थे, हमारे दोस्त के घर, नाम सब नहीं बोलता कहीं, सिर्फ किस्सा सुन कि उनकी अम्मियाँ को बिल्कुल दीनदारी से हटको थे, बिल्कुल दीनदारी से, कुछ भी दीनदारी नहीं, रत्ती भी दीनदारी नहीं, उनके घर में दीनदारी नहीं। उनका फ़िरक़ा भी अलग था, एक फ़िरक़े के अतबार से फ़िरक़े से भी थे, न साथ में थे। तो अल्लाह की शान एक मरतबा हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार साहब दामत बरकतुहू, अल्लाह हज़रत वाला की उम्र में बरकत अता फरमाए, हज़रत की किताब हाथ में पढ़ना शुरू करें, हज़रत की किताब। तो हज़रत की किताब से दिल लगा, हज़रत की बड़ी रूहानी बातें बड़ा असर करती दिल को। पीर साहब हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार साहब दामत बरकतुहू, महबूबुल उलमा वस्सुलहा, हमारे शेख के शेख होना। तो हज़रत की बातें जब पढ़ लग जाते थे तो बड़ा दिल को लगी बातें, पढ़ते 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 बहुत अल्लाह से मोहब्बत होगी, नबी की सुन्नतों से मोहब्बत होगी। फिर अल्लाह की इबादत शुरू कर डाले, नबी की इबादत शुरू कर डाले, क्या और नबी की सुन्नतों पर अमल कर डाले। तो हमने जुमा में उनके घर को जाने का मौका मिला, तो हमें दोस्त सब बैठे थे उनके घर में। तो न्यूज़पेपर हमें ले लगा लेते, मदरसे में पढ़ते थे ना, हमें क्रिकेट का ये वो न्यूज़ हम पढ़ लेने का वास्ते हमें रूम में न्यूज़पेपर ऐसा खोल को पढ़ने के। उनका बेटा फ़ौरन है बोले रखो बया यहाँ पेपर पढ़ना को, क्या बा पेपर पढ़े तो क्या बात है, नको नको पेपर पढ़ना को,
यहाँ हमारे नबी को नबी की ज़ियारत हो गए, यहाँ हमारे अम्मी को ये घर ये कमरे में हमारे नबी अल्लाह की इबादत करते सो, ये कमरे में हमारे अम्मी अल्लाह की इबादत करते सो, नबी पर दरूद पढ़ते सो, यहाँ आराम करते सो। इसी कमरे में हमारे अम्मी को नबी की ज़ियारत हो गए और कई बार हो गए। तहज्जुब हुआ मुझे, और अल्लाह की कसम बहुत देर तक थे हमें, करीब ज़ोहर उंगल को ज़ोहर का खाना खा ले को, असर के करीब भी, लेकिन रत्ती पट्टी की आवाज़ नहीं, रत्ती बात करने की आवाज़ नहीं, रत्ती चलने की आवाज़ नहीं, रत्ती फिरने की आवाज़ नहीं। बुलाए तो भी हाथ से नहीं, चमचे से डोर को मारते से, चमचे से। आलिमा भी नहीं हो, क्या भी पढ़े लिखे आलिमा नहीं हो, चमचे से। और गली के जितनी भी बच्चियां हैं, औरतें ही, उन्होंने अपनी बच्चियों को ले ला वहाँ छोड़ा देते खिदमत को। इतनी छोटी बच्चियां मखना पहले को आती, देखना दस्तरखान बिछाती थी, इतने चलो बड़े प्यारे रहती बच्चियां, मखना डाल को सीधा आती, अस्सलाम वालेकुम बोले से दस्तरखान बिछाती चली जाती, हंसते तक भी नहीं, बात करते तक भी नहीं, सीधा आती बिछा चले, हमें पकड़ खींचे तो टिकते नहीं, सीधा आती दस्तरखान बिछाती चली जाती, सीधा आती खाना रख डालती चली जाती। खाना खाने का जुल्म से बिठाए तो अदब से बैठ को, हाथ धो को, कहीं से सुन लिए ही, नमक खाने से पहले नमक खाना सुनना था, थोड़ा चॉकलेट खाना खाते, बच्चियाँ छोटे दुआ पढ़ ले, कितने प्यारे। फिर आखिर में जाते वक्त मैं पर्दे में से अस्सलाम वालेकुम जाकर आता हूँ, दुआ में याद रखो क्या, जवाब आते कि इंतज़ार में खड़े लगता, हमारा दोस्त नहीं आता ले चल गए, अंदर से दुआ दिया ले रहे। उनके शोहर बदल गए, उनके बच्चे आलिमा, हालांकि पढ़े लिखे नहीं हो, अभी आलिमा नहीं हो, दीनदार नहीं हो, मामूली एक अय्याश औरत हो तच, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की इबादत शुरू करे, अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ गई, नबी की सुन्नत अमल में आ गए, नबी की ज़ियारत हो रही है और आवाज़ तक नहीं आ रही है घर में, चलने की, फिरने की, बात करने की, कुछ भी नहीं। क्या सुकून की ज़िंदगी, अल्लाह की कसम आज भी मुझे याद है वो खाना, वो सलना खाते गए, हमें खाते गए, सुकून था भाई, वो खाना सलना बड़ा सुकून था, अल्लाह की कसम। कई मरतबा मैं हमारे मदरसे में भी किस्सा सुनाया, हमारे अच्छे अच्छे घरों को हमें भी गई, लेकिन इतना पर्दा हमें देखे, इतना पर्दा हमें देखे, सिर्फ किताबां पढ़ को अल्लाह से मोहब्बत, नबी से मोहब्बत, इतना अल्लाह का डर, इतना अल्लाह का खौफ, नबी की सुन्नत पर इतना अमल। तो देखो औरत छुपा कर रखे तो कितना फ़ायदा हो रहा है भाई। औरत ही एक अच्छी चीज़, सबसे अच्छी चीज़ आज औरत सब में आ रहा है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, उन्हें बदल गई तो ख़ानदान बदल जाती, उन्हें बिगड़ गई तो ख़ानदान बिगड़ जाती। तो दो चीज़ें छपाना था, एक दौलत को, एक औरत को, लेकिन आज ये दोनों चीज़ें कहाँ हैं, बाहर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये 1400 साल पहले हमारे नबी बोली, सो कब 1400 साल पहले एक ज़माना ऐसा आता है कि हर आदमी सूद खाने वाला होगा। हमारे नबी 1400 साल पहले बोल रहे हैं, हर आदमी सूद खाता है, ब्याज खाता है, लंचम खाता है, ये सब खाता है आदमी, हर आदमी। और अगर नहीं भी खाया तो सूद का धुआं, सूद का गर्दो गुबार तो भी उसके नाका तक पहुंचता, सद में आ रहा है। जैसे आजकल हमारे हो रहा है कि हमारा हर पैसा बैंक में जा रहा है, हमारा हर इनकम कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है। और हमारा पैसा, हर पैसा बैंक में है तो कुछ ना कुछ उसमें सूदी खर्च होता है कि नहीं। अब हमें बैंक में जाना है भाई, हमारा काम कराना हो। तो यहाँ तक उलमा फरमाती कि बैंक में बैठकर पानी भी तक पियो ना को, बैंक का इतना ख़तरनाक है, हराम है बैंक में बैठ को पानी पीना, बैंक का। तो अब ज़रूर हमारा हर पैसा कहाँ है, बैंक में से। तो अब बैंक में है तो ज़रूर हमारा ऊपर नीचे होता रहता, कुछ ना कुछ बढ़ता रहता कि नहीं, उसको बढ़ता रहता। वो पैसा अलग करते नहीं, आदमी मिला कर रख लेते। हमारे मिसाल के तौर 1 लाख रुपए ही भाई, बैंक वाले क्या करती, रत्ती पैसे बढ़ाती, उसको 100 रुपये 200 रुपये बढ़ाती, 1 लाख 100 रुपये 200 रुपये। अब वो 200 रुपये भी हमें हिसाब में रख लेना है, वो रख लेना नहीं, वो अलग करना, उसका हिसाब रखना हमें। हमारा कितना पैसा था, अब कितना बढ़ को है, बड़े पैसा सब आपको गरीबों में बढ़ देना, फ़कीरों में बढ़ डालना, यतीमों में, बेवाओं में, हम बढ़ डालना, उसे इस्तेमाल नहीं करना।
इसीलिए देखो हमारा हर पैसा हमारा हर पैसा हर एक आदमी का पैसा जब कहाँ है, बैंक में है। हर एक जने भी कहाँ से जाकर ले लगाना, बैंक से ले लगाना। हमारे नबी की बात पूरी हुई कि नहीं? और एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक दिरहम सूद का, लंचम का, ब्याज का, सूद का एक दिरहम, मिसाल के तौर पर 1 रुपया 36 मरतबा 30 मरतबा जिना करे तो कितना बड़ा गुनाह की, उतना बड़ा गुनाह 1 रुपया है तो सूद का। 30 मरतबा जिना करे तो कितना बड़ा गुनाह की, उतना बड़ा गुनाह क्या? 1 रुपया सूद का खाना। 1 रुपया को भी 4 आने 8 आने 12 आने कितना भी रंद खाना। 36 मरतबा जिना करने से जो गुनाह है उतना बड़ा गुनाह सिर्फ क्या करने से? 1 रुपया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माल और दौलत से आदमी क्या चाहता है? माल बढ़ना चाहता है। तो माल को बढ़ाने के वास्ते आदमी क्या करता है? सूद में डालता है, सूद में लगाता है, ब्याज में लगाता है, वड्डिया में लगाता है। लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है लास्ट में वो तबाही। दुनिया में खूब कमा लेंगे और, लेकिन मौत के बाद क्या होने वाला है? तो माल दौलत जितना भी बढ़न दे, लेकिन उसकी तबाही लास्ट में, उसका अंजाम तबाही। इसलिए अल्लाह फरमाती है कुल ला यस्तविल खबीस वत्तय्यिब वलो अअजबक कतरतुल खबीस, कि हलाल और हराम माल दोनों बराबर नहीं। हालांकि हराम माल ज़्यादा दिखता तुमने, लेकिन हलाल और हराम दोनों बराबर नहीं। हलाल और हराम में बहुत फ़र्क है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की आयत है, यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात, सूद तुम्हारे पैसों को खा जाता है, सदक़ा तुम्हारे पैसों को बढ़ाता है। आज अक़ल क्या बोलती है? सदक़ा दिया तो हमारे पैसे कम हो जाती, सूद में दिया तो हमारे पैसे बढ़ती। लेकिन अल्लाह क्या बोल रहा है? सूद में दिया तो तुम्हारे पैसे घट जाती, सदक़े में दिया तो तुम्हारे पैसे बढ़ जाती। अस्सदक़तु तुत्फ़िउ ग़ज़ब रब्बी, सदक़ा तुम्हारे अल्लाह के गुस्से को ठंडा करा देता। सदक़ा 70 बलाओं से दूर कर देता तुमको। सदक़ा तुम्हारे हर ज़रूरत को पूरा करता। यानी सदक़ा देने वालों की हर ज़रूरत को अल्लाह पूरा करता। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यतख़ब्बतुहु शैतान मिनल मस, कुरान क्या पढ़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया कि कल क़यामत के दिन आदमी ऐसा हो जाता कि सूद का खाने वाला, जैसा उसके जिस्म में जिन आगा तो कैसा करती नहीं आदमी, बाला खुले छोड़ ले को, आवाज़ा कर ले को, चक्कर चक्कर गिर जा को, भाई जिन्ना ये वो आगे करते रहती नहीं आदमियाँ। शैतान आगा बोलती नहीं इनके जिस्म में। शैतान नहीं, वो कौन आता सो? जिन आता सो। तो जिन आने की वजह से जो करती ना उन्होंने वैसे कामा करता रहता, कहता मैदान हशर में खड़िया को सूद खाने वाला। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो देखो सूद का अंजाम बड़ा ख़तरनाक है। इसलिए सूदी लेन देन भी नहीं, सूदी कारोबार भी नहीं, और सूद आपस में दिलाने का ज़रिया भी नहीं। हर चीज़ से दूर हो जाओ। सबसे बड़ी डरने की बात अल्लाह क्या फरमा रहा, देखो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूल। ऐ लोगों, सूदी कारोबार को छोड़ दो। ईमान वालों, सूदी कारोबार, सूदी व्यापार, लंचम, सूद लिए जितने भी हैं सब छोड़ दो। अगर नहीं छोड़े तो रेडी हो जाओ। क्या करने के वास्ते? अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग करने के वास्ते। हिम्मत है? अल्लाह बोल रहा रेडी हो जाओ। जंग ऐलान है, जंग कर रहा अल्लाह, जंग का ऐलान कर रहा। तो कितनी गलीज़ चीज़ है सूद। इसलिए हमारे हिंदू भाइयों में भी ये जायज़ नहीं। लंचम लेने वाले कैसा, मैं ये करती नहीं हूँ ना। अरे पुलिस वाले लंचम लिए तो उनके फ़ोटो पकड़ को डाल रहे यूट्यूब में, इज़्ज़तें निकाल रहे हैं। आज हर चीज़ कॉमन हो गया। आज हमारे नबी ने फरमाया मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, कि मुसलमान के ऐबान को छपा अल्लाह तुम्हारा ऐबान छपाता। बोले कि नहीं हमारे नबी? आज हर चीज़ क्या बन जाती? वीडियो बन जाती। वीडियो बन जाओ को भाई अपलोड करो, भाई फॉरवर्ड करो, भाई सब्सक्राइब करो, भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। भाई ऐबान को बाहर डाल रही कि नहीं? हर एक के ऐबान गलती करे ही नहीं है, समझा लो। लेकिन फ़ोन में पकड़ को डालने का क्या? हर चीज़ भी आज फ़ोन में यूँ पकड़ डालती, सामने पकड़ डाले सब फ़ौरन किस में डाल डालो। फ़ोन नहीं से पहले कैसा समझाते थे? आदमियों को बचाना सकते, किसे बचाना सो? आदमियों को बचाना सकते। वीडियो कहीं बनाते सो
और एक बात जाको ना धोखा दे दो। फ़ोन नहीं था ना तब कैसा बचाते थे अपने को, इतना बचाने की फ़िक्र आ गई। खुद अब तो अपने आप को बचाया, फजर नमाज पढ़ को आ। खुद अपने आप को जहन्नम से बचाया गया, भाई क्या पढ़ को आ, फजर पढ़ को। आदमियों को बचाने की फ़िक्र आ गई तुझे, किससे? मोबाइल से, वो भी किससे? मोबाइल से। तो कितने चीज़ें हो रही कि नहीं आज, कोई ले रही वो पकड़ डाले, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में कोई ले रही उनको पकड़ डाले, इनका पकड़ डाले, कितना बदनाम कर रही है आज, कहीं को कर रही सर मारा है। तो ये सब उनके पास भी ये चीज़ पसंद नहीं है, लंचम लेने वाले, ब्याज लेने वाले, सूद लेने वाले, लेकिन करने वाले करते ही। बहुत सारे बोलती उन्होंने करती ना, उनको क्या भी हुआ ना। मैं तो बोलिया कल्लीज बोलिया मैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को शहीद करने वाले खुश थे। हज़रत हुसैन शहीद हुए नहीं है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह को शहीद करने वाले खुश थे। हज़रत उस्मान शहीद हुए, दुनिया के एतबार से खुश थे वो, लेकिन अब उनके साथ क्या हो रहा है तुम ना मालूम, मंजे मालूम, किसे मालूम? अल्लाह को मालूम। हाँ शहीद हुए भाई, अल्लाह क्या भी करे, नहीं खामोश था अल्लाह। इस तरह कौन कौन सूद में ले रही, कौन कौन दे रही, उन्होंने हमारे लिए आइडियल। क़िस्सा सुना मैं कि एक औरत पासपोर्ट के लाइन में खड़ी थी, पासपोर्ट पूरा वीज़ा ये वो सब लेती नहीं एयरपोर्ट में, वहाँ खड़े को थी मुसलमान औरत। तो जब उसका टाइम आया, जब उन्हें सामने गई, पासपोर्ट दी, सर मारा है, तो उन्हें बोला थोड़ा निकाब उठा माँ। उन्हें बोली फ़ोटो तो है ना, मैं निकाब उठाती नहीं माँ, ये रूल है, तुम्हें चेहरा उठाना, हमने चेहरा दिखाना। फ़ोटो तो है, मेरा शोहर भी है, मेरे रिश्तेदार भी हैं, मैं सबके साथ आई हूँ, मैं तो बदली नहीं हूँ, मैं निकाब के उठाना, गैर मर्द बने दिखाने का मैं नहीं दिखाती माँ। पीछे जो औरतें खड़े ही, उन्होंने सब चेहरे उठा खोल को खड़े ही ना, उन्होंने सब बग़ैर बुरखे के ही, बग़ैर निकाब के। तो मुसलमान औरत बोली मेरे लिए आइडियल इन्होंने, मेरे लिए आइडियल हज़रत फ़ातिमा, मेरे लिए इन्हों आइडियल रहते तो मैं भी बुरखा नहीं सा खड़ी रहती। मेरे लिए आइडियल कौन है? हज़रत फ़ातिमा। देना है तो दियो, नहीं कि तो पासपोर्ट दिया लो, मैं घर को जाती हूँ, लेकिन निकाब नहीं उठाती। मुझे इससे ज़रूरत ही नहीं कि तक़वा है, क्या है तक़वा। बल्कि जना गुस्सा आ जाता, क्या होगा भाई दिखा ले तो, कितने जगह दिखाती, क्या कर डाले तो क्या, बल्कि जना गुस्सा आया तो गुस्सा कर ले मरन दे। लेकिन ये तक़वा है, जो आदमी तक़वे पर चलता रहता नहीं है उसे ख़राब कर डालना नहीं है। एक आदमी किसी से बात करता नहीं, पाप नमाज़ा पढ़ लेता है, साइलेंट हो जाता है, खामोश है, तो उसे बार बार छिड़ती, बड़ा सूफ़ी रहना, बड़ा साइलेंट रहना, बड़ा वल्ला वाला बन कर ये रहे, उन्हें ज़रूर अभी ख़राब बन जाता, मुझे सब छेड़ देंगे, बन जाता कि नहीं। तो जो आदमी सुधरा है पाप उसे सुधरने देना, उसे बिगाड़ने की कोशिश नहीं करना। तो हमारे लिए आइडियल कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्होंने आइडियल हमारे लिए, इन्होंने ऐसा करे ना, उन्होंने ऐसा करे ना, नहीं, हमारा नबी क्या करे बस होता। कौन पसंद करेंगे नहीं करेंगे भाई, सिर्फ कौन पसंद करना, हमें अल्लाह पसंद करें बस, हमें नबी पसंद कर लें बस। दूसरे कौन पसंद करेंगे नहीं करेंगे, ज़रूरत ही नहीं हमना। कौन चाहते कौन नहीं चाहते, कौन पकड़ा लेंगे कौन नहीं पकड़ा लेंगे, कौन देंगे कौन नहीं देंगे, कौन इज़्ज़त से बात कर कौन नहीं बात करेंगे। लेकिन कभी भी हमें अल्लाह का हुक्म नहीं तोड़ना, नबी की सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं करना, कोशिश करना। अगर हो गया इंसान होने के नाते अल्लाह का हुक्म तोड़ डाले, नबी की सुन्नत छोड़ डाले, माफ़ी मांग लेना, क्या कर लेना। लेकिन आदमियों की फ़िक्र करना नहीं, किसकी फ़िक्र करना नहीं, आदमियाँ क्या बोल लेती कि, इन्हों क्या बोल लेती कि, उन्हों क्या बोल लेती कि, नहीं छोड़ दो, अल्लाह क्या बोल लेता, बस ये फ़िक्र है। समझ में आ रही है? अल्लाह हम सबको इन सारी बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से एक शुरू हुआ था क़यामत का मंज़र और अर्श का साया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से 40 की 40 बातें भी पूरी हो गई, 40 के 40 लोग भी पूरी हो गए इंशाअल्लाह। इन तमाम बातों पर अल्लाह हम सबको आखिरी सांस तक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इन सारी बातों में जो भी बातों से हमारी गलत ज़बान से गलत बातें निकल गई हैं, अल्लाह उस पर हरगिज़ हमारी पकड़ ना फ़रमाए। जितनी अच्छी बातें हैं उन बातों पर मुझे भी और आप सबको भी और पूरी उम्मत को भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ा संगम है ये इल्म और अनवारे नबूवत का, यहाँ से फैज़ मिलता है शरीयत का, तरीक़त का। दुकाने इश्क है ये मिलती है या इश्क की पुड़िया।